Hello guys, welcome back to English Literature classes BA Part 1. Today our topic is bores. Okay, आज का टॉपिक है हमारा bores. By E.V. Lucis. Okay, so I will discuss about the topic of the E.V. Lucis bores. So without wasting much time in discussion, we should start this video on this topic. Okay. E.V. Lucis was born in 1868. Okay. E.V. Lucis is a man with astonishingly wide learning. His essays are found in character and comedy. Okay. Old Lamps for New, and all of them enjoyed immense popularity. They are marked by fancy, literary, artificials, common sense, and humor. His humor is kind and humane. His essays are mainly characterized by his ruthlessness of observation and fancy. He has no superficiality of thought, and they reveal the fact that he had a great liking for the curious, the human, and the ridiculous. He has the capacity of reading a character with wisdom, but he is the mind of a critic and a commentator. Okay, he is one of the greatest master of essay proper, particularly the light personal essay. There is geniality of tone, all embracing sympathy, and he displayed distracted qualities everywhere. He is born essayist who finds completely as easy to move with the confines of personal essay. He has a great charm and an imitable quality of his own. The style of Lucis is remarkable for brevity in words as well as in the sentence structure. Okay, humor is his most attractive quality, and his irony has no sting. Still, sadness occasionally creeps in. Okay, so this is the description of E.V. Lucis. After it, we should start the explanation of bores. Okay, अब हम चैप्टर बोर्ड्स के बारे में बताएंगे. अभी हमने बताया था आपको E.V. Lucis के बारे में. ओके, अबाउट द essay bores. In the essay bores, the essayist has written about the boring persons. In the essay bores, the essayist has written about the boring person. इस essay में bores में निबंधकार किसके बारे में लिखते हैं? जो बोरिंग लोग होते हैं, जो बोरिंग व्यक्ति होते हैं, उनके बारे में बताया गया है. ओके, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू राइट अबाउट सच टाइप ऑफ पर्सन. इट इज़ नॉट एन ईजी, ये सरल नहीं है, ये एक सरल कार्य नहीं है लिखना. किसके बारे में? वो भी अबाउट सच टाइप ऑफ पर्सन, ऐसे व्यक्तियों के बारे में. सच राइट्स मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, ऐसे लोगों के बारे में जिनके सच राइट्स मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स, वही लिख सकते हैं जिनमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होती है. बट आई एम एन एक्सेप्शन. ए बोरिंग पर्सन रिमेन्स unaware about his boring behavior. Okay, he consider himself as if he is
also the same type of person and why writing it. Okay. He considers himself as if he is socially very active. According to the writer, he is also the same type of person and why writing it. Okay? तो ही कंसीडर, वो ये सोचते हैं कि हिमसेल्फ, स्वयं को, एज इफ ही इज सोशली वेरी एक्टिव, कि ही इज सोशली वो सोशली तौर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, फुर्तीले हैं. अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार ही इज़ आल्सो द सेम टाइप ऑफ पर्सन, वाई राइटिंग इट. ही वॉन्ट्स टू रिमूव दिस ब्लैक स्पॉट, वो ये काला धब्बा हटाना चाहते हैं. अकॉर्डिंग टू ल्यूसिस, एवरी पर्सन इन हिज लाइफ, हर कोई व्यक्ति लाइफ टाइम में अपने बिकम ए बोरिंग पर्सन. अकॉर्डिंग टू ल्यूसिस, एवरी पर्सन इन हिज लाइफ, हर कोई व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में बिकम ए बोरिंग पर्सन हो सकता है. हाउएवर, फिर भी, फॉर ए लिटिल टाइम, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए. इट इज़ ए काइंड ऑफ प्राउड, एक तरीके से ये गर्व ही है. विच प्रोवोक्स ए पर्सन टू स्पीक कंटिन्यूसली, जो कि एक व्यक्ति को भड़काता है. किसके लिए? स्पीक करने के लिए. कैसे स्पीक करने के लिए? वो भी कंटिन्यू स्पीक करने के लिए, मतलब कंटिन्यू बोलने के लिए उसको भड़काता है. ओके. सो द पोर्स कैरीज इन अनमिस्टेकेबल स्टैम्प ऑफ द रिसेंट एंड सनली स्टाइल ऑफ लिसस. ही टेक्स अप ए वेरी कॉमन फीचर्स ऑफ सोशल लाइफ. वो एक कॉमन फीचर्स बताते हैं, जो हमारे सामाजिक जीवन का जो एक कॉमन फीचर्स है, एक साधारण सा गुण है, वो बताते हैं. कहते हैं एंड देन प्रेजेंट टू टेल अस हाउ इट इज़ टायरसम एंड हाउ वी कैन सेव आवर सेल्फ. कि अगर हमें कोई बोर व्यक्ति मिल जाता है तो हम किस तरीके से उसकी बातों से थक जाते हैं, तो हम और किस तरह से हमें उससे बचाना चाहिए. इनफैक्ट वास्तव में द ऐसे रिवील द साइकोलॉजी एंड ट्रूथ ऑफ ह्यूमन नेचर. ये जो ऐसे है वाकई में क्या खोलता है? साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को रिवील्स करता है, एंड ट्रूथ ऑफ ह्यूमन नेचर, और मनुष्य का जो नेचर होता है, व्यक्ति का मानवीय नेचर जो होता है, उसकी सच्चाई को व्यक्त करता है. एवरीबडी थिंक्स दैट ही इज राइट. देखिए, हर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो सही है. ओके. एंड दैट व्हाट इज गुड, और क्या सही है, मतलब क्या अच्छा है. एवरीबडी थिंक, हर कोई व्यक्ति सोचता है दैट ही इज राइट, वो सही है. एंड दैट व्हाट इज गुड, और क्या अच्छा है. एंड इंटरेस्टिंग फॉर हिम विल आल्सो प्लीज द अदर मैन. एंड इंटरेस्टिंग, लेकिन दिलचस्प बात यह है उन लोगों के लिए, विल आल्सो प्लीज द अदर मैन, जो कि प्लीज करेंगे, किससे खुश करेंगे? अदर मैन, दूसरे व्यक्तियों को. ओके. पीपल टॉलरेट हिज बोरिंग हैबिट, लोग बर्दाश्त कर लेते हैं हिज बोरिंग हैबिट को, उसकी जो पकाऊ आदत है. ओनली बिकॉज मैन हैज़ टॉलरेंस बाई नेचर, केवल व्यक्ति ही उस नेचर को टॉलरेंस कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं. एंड डज नॉट वॉन्ट टू हर्ट अदर, और किसी दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते हैं. द एसेस्ट calls it an incurable human weakness. निबंधकार इसे क्या बुलाता है? इसे पुकारता है incurable human weakness. ओके. मतलब एक तरीके से मानवीय कमजोरी है, वो भी कैसी? incurable. There are so many types of bore. देखिए, बहुत प्रकार के बोर होते हैं. ओके. कई प्रकार के लोग बोरिंग वाले होते हैं. And the only way to avoid them is so think aloud. And only way, केवल एक ही तरीका होता है avoid them is to think aloud. ऐसे व्यक्ति को अवॉइड करने का एक ये तरीका होता है कि तेज बोलो.
बट सम ऑफ दैम, लेकिन उनमें कुछ होते हैं, आर वेरी eccentric still. There is no sheet of armor's plate which can save us. Okay, the only prescription that the writer gives is to cultivate the habit of thinking. Writer give is to cultivate the habit of thinking truthfully aloud. Only then we can avoid our cowardice and weakness against them. Okay, so we can say that according to Lysis, every person in his lifetime may become a boring person. However, for a little time period, it is a kind of proud which provokes a person to speak continuously. Okay, but some of them are very eccentric still. There is no sheet of armor's plate which can save us. The only prescription the writer gives is to cultivate the habit of thinking truthfully aloud. Okay, only then we can avoid our cowardice and weakness against them. Okay, so this is the all description of the topic bores. Okay, thank you for watching my YouTube channel.